माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या ये आफ्टर क्वेश्चन में जब इंट्रोड्यूस हो जब विरोध कर लेना, ठीक है? इंट्रोड्यूस के समय विरोध कर लेना, इंट्रोड्यूस के समय विरोध करना ना आप। Question number 221. A statement is laid on the table of the House. माननीय Honorable Speaker, सदस्य, sir, the Honorable Minister has stated that a multi-modal logistic park at Nasik with an estimated cost of 850 crore is proposed by National Highway Logistics Management Limited under the Ministry of Road Transport and Highways. I wish to know from the Honorable Minister if the first phase of the Nasik MLLP itself is expected to take 3 years. What is the total timeline for the project to become fully operational? Speaker, sir, at the present juncture, a study has been carried out, and based on that study, it has been found that we should consider setting up a logistics park. And once the final contours of the study are ready, we will have to approve that project in consultation with the state government. The timeline is not yet fixed, but I can estimate broadly that once it is approved, in about 2.5 years, we should be able to complete the project. honorable member, supplementary. Given rising logistic costs, post-harvest losses, and farmer distress in Nasik district, has the government any interim logistic or cold chain solutions under the multi-modal logistic park becoming operational? First of all, I do not agree with him that at the present juncture, the farmers in the area are suffering distress, as he points out. Certainly, logistics park will help them increase their ability to store goods for a longer period, get a better value for their produce. But I can assure the honourable member that in the interim, several measures have been taken from time to time to ensure that the farmers get a fair price for their produce and do not suffer any losses. श्री नरेश मस्के। माननीय मंत्री जी, सप्लाई चेन को कुशल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सेज के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना समय की मांग है, जहां वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधा एक ही छत के नीचे मिले। ठाणे के रणनीतिक स्थिति और वहां के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को देखते हुए क्या सरकार वहां पीपीपी मॉडल के तहत ऐसा लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना बना रही है ताकि फ्रेट विलेज और एग्जिम जोन के साथ मिलकर स्थानीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके? आज के भौगोलिक स्थिति थाना की देखते हुए मैं समझ सकता हूं माननीय सदस्य की जो सुझाव है कि वहां पे भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बने, लेकिन आज जो अभी स्टडी के माध्यम से नासिक आइडेंटिफाई हुआ है, आगे चल के थाना को भी हम स्टडी करेंगे और अगर वहाँ की भी वायबिलिटी निकलती है तो अवश्य उस पर विचार करेंगे। और ये भी सुझाव माननीय सदस्य का अच्छा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया जाए, उससे उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी होगी, गति भी ज़्यादा अच्छी होगी, तो उस सुझाव को हम जरूर मद्देनजर रखेंगे। Honorable member Manikam Tagore. Thank you, sir. Sir, my question is related to the, it's listed in 232, sir. Regarding that, I wanted to request the Honorable Minister. 232 question has been listed. With that thing, there is a supplementary, sir. The government list protocols, government list portals, missions and platforms. आप तो तैयारी से But आए होंगे ना? the Minister, Honorable,
But the minister tells this house how many MSME exporters have actually received financial support for costly SPS and TBT compliance, and how many shipment rejections or port detentions have reduced because of these schemes. If the ministry have no impact data, is it true that these initiatives remain announcements without accountability, especially for the small exporters struggling to survive, sir? Thank you, sir. Speaker, sir, the fisheries sector is one sector on which both the Department of Fisheries and MPDA under Commerce Ministry are extremely focused and are continuously making sure that we can diversify our fish exports to be able to ensure growth. I'm happy to share with the House, through you, sir, and to the Honourable Member, that despite all the global uncertainties, in the first 6 months, rather 7 months up to October, the marine exports have shown a nearly 20% growth in exports, which is very creditable considering that there are anti-dumping duties in certain countries, and for a long time, many fish establishments did not get their approvals from other countries. I'm also happy to share with the House through you, sir, that in the last 12 months, we have been successful in getting 102 marine fish export establishments registered in European Union, the 27-nation European Union bloc. We have also got about 25 fish establishments registered and approved by Russia, and many more are under the approval process in both the European regions. This will provide a huge avenue for further growth, and Honourable Minister of Fisheries, Mr. Rajiv Lalan Singh ji, and I are continuously monitoring to make sure that this sector progresses well. As regards the cost for mandatory and occasionally voluntary certifications, we have just approved a scheme for 25,000 crore rupees called the Niryat Disha, which is a part of the export promotion mission. In Niryat Disha, we are working out the specific scheme guidelines which will be issued very shortly. We intend to cover the costs for mandatory standard and certification that are required by the importing countries. It will help many more people get into the export of fish, and our effort will be to diversify market and encourage new fishery farmers and fishing establishments look at export rather than just look at the domestic market. Thank you, sir. Question number 222, 222. 1 minute, माननीय मंत्री श्री अरूप चक्रवर्ती। Sir, 222. माननीय मंत्री गया है। माननीय सदस्य सर, पिछली 2 साल से पीएम किसान प्रकल्पों के अंदर जितना बजट हुआ था वो कितना खर्चा हुआ है, उसका 1 साल में कितना हुआ उसका रिपोर्ट नहीं है। सिंस 2 years बैक किसान प्रकल्प का अधीन में जितना आपको बेनिफिशियरीज है उसका नाम नोटिफिकेट किया गया, कितना संख्या का नोटिफिकेट किया गया है ये हम जानने चाहता है। सिंस 2 years बैक कितना किसान का नाम आपको नोटिफिकेट किया गया है, कितना को सुविधा मिला है, कितना को नहीं मिला है, ये जानने चाहता है। दूसरा ऐसा है, ओके, सप्लीमेंट्री पूछ लेना, आप एक का जवाब दे देना। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं उनके राज्य की बात है। उन्होंने 7 किस्त तक राज्य को लाभान्वित नहीं किया
भारत सरकार की योजना को लागू नहीं किया। अब वो पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष में क्या बजट था। तो बजट तो मेरा ये किसानों के लिए, उनकी मांगों के लिए पूरा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने राज्यों में उसे लागू नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो राज्य की है और कृषि विभाग राज्य के किसानों के हित के बारे में सोचते हैं। केंद्र सरकार तो किसानों को फायदे के लिए योजनाओं को लागू करती है। उन योजनाओं को के राज्य सरकार को लागू करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हर्ज हुआ ये तो वो स्टेट गवर्नमेंट बताए। Honorable member supplementary. Sir, I am getting the answer from the Honorable Minister. I am not satisfied as the Bengal government, West Bengal government 1 करोड़ 9 लाख किसान को 2 बार पैसा देता है, 5-5 हजार करके 2 बार। हम लोग नहीं करता है, जो बात बोला ये गलत है। Secondly, sir, I am very sorry to inform you that कि हम लोग को जितना हमारा मेंबर है पार्लियामेंट में, सबके लिए 5 लाख रुपये 5 करोड़ रुपया ईयरली दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो पैसा बांटता है गरीब आदमी के लिए, छोटा छोटा काम के लिए, देखा जाता है 18% पैसा 5 करोड़ से निकाल लेता है जीएसटी में। 5 करोड़ नहीं मिलता है, 96 लाख रुपीज। अन्य सदस्य, ये प्रश्न इससे संबंधित नहीं है सर। इसमें क्या हम किसान का मदद भी नहीं कर पाता है। अगर कोई किसान अपना जमीन में 4 बीघा में काम करेगा, हमसे एक तो सबमर्सिबल मांगेगा, हमारा पैसा नहीं है, 5 करोड़ आप हमको नहीं देता है। ये तो प्रश्न से कोई संबंधित नहीं है। हमारा भारत सरकार जो कृषि विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट को किसान के लाभान्वित के लिए जो योजनाएं दी हैं उसको लागू करना तो स्टेट गवर्नमेंट में है, और एमपी फंड का तो इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। श्री के ईश्वर स्वामी। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவசாயிகளுக்கு தொலைதூர பகுதிகளில் மோசமான இணைய அணுகல் மற்றும் டிஜிட்டல் திறன்கள் இல்லாததால் ஆன்லைன் KYC மற்றும் படிவத்தை நிரப்புவது கடினமாகிறது. சரிபார்ப்பு விதிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் மாற்றங்கள், தரவு பிழைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் செய்யப்படாத நிலப்பதிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. விவசாயிகளுக்கு ஆதார் பதிவுகளில் பெயர் பொருந்தாதது அல்லது அவர்களின் வங்கி விவரங்கள் தெரியாமல் இருப்பது பணம் செலுத்துவதை தடுக்கிறது. ஆதார் அடிப்படையிலான கட்டண முறை ABPS மற்றும் தரவு பிழைகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் பணம் செலுத்துவதில் தோல்விகள் மற்றும் நீண்ட காத்திருப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். விண்ணப்பம் மற்றும் உரிமை கோரல் தீர்வுகளுக்கான நீண்ட மற்றும் சோர்வான செயல்முறைகள் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துவதில்லை. கொடுப்பனவுகள் பற்றிய சீரற்ற வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் மோசமான தொடர்பு விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை சிதைக்கிறது. எனவே இது போன்ற நிலைமையை சரி செய்ய அரசு கவனம் செலுத்துமா என்று அமைச்சர் மூலமாக அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, ये तो राज्य सरकारों का काम है कि वहाँ किसानों का दस्तावेज या अन्य जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करने का, ये केंद्र सरकार का काम नहीं। ये इनका कहना है कि जो सही है KYC और भूमि दस्तावेज को मिलाने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप राज्यों को डायरेक्शन देना कि वो इन दस्तावेजों को ठीक करें। निश्चित रूप से। श्री मितेश पटेल। अध्यक्ष महोदय, PM किसान योजना में करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिसके कारण उन सभी पात्र किसानों को बिना किसी त्रुटि के उनके ही खाते में और समय पर लाभ की धनराशि पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि PM किसान योजना में लाभ को किसानों के खाते में बिना किसी त्रुटि के पहचानने में सरकार ने क्या उपाय किए हैं? किसी भुगतान के विफल होने पर सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का प्रश्न बहुत ही सही है।
मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना का लाभ लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचे 13वीं किस्त के पीएम किसान के अंतर्गत लाभ जारी करने के लिए आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में स्थानांतरित हो। इससे खाता आधारित भुगतान की समस्या समाप्त हो गई है, जिसमें डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, बैंक विलयन के कारण खाता विवरण में परिवर्तन की संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप 21वीं किस्त में 99.87% की ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक देखी गई है। श्री राम शिरोमणि वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न है, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जनपदों में विगत 2 वर्षों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत नामांकित कितने किसानों को अब तक पूर्ण, आंशिक अथवा कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है, इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको लिखित रूप से भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 223 श्री मनीष जायसवाल। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्ग राष्ट्र के अनुभव और संस्कार हैं। वर्तमान में इस देश में 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर के 30 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में हम एक युवा राष्ट्र हैं, लेकिन ये युवा राष्ट्र कभी न कभी प्रौढ़ और बुजुर्ग राष्ट्र बनेगा। तो स्वास्थ्य, पारिवारिक देखभाल को सुदृढ़ करने तथा रिश्तों में खटास के कारण वृद्धाश्रमों में जो छोड़ जाने की प्रवृत्ति को कम करने पर सरकार क्या पहल कर रही है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग हम सबका गौरव है और राष्ट्र की धरोहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। उसी में बड़ी संख्या में, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि 2011 की जनगणना में लगभग 10 करोड़ 38 लाख हमारे बुजुर्ग थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ पर आज हम युवा देश की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या लगातार बढ़ रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि आज जो छोटे परिवारों की परंपरा चल रही है, न्यूक्लियर परिवारों में बढ़ोतरी और रोजगारों के कारण से परिवारों को दूर से शहरों में चले जाना, सीनियर सिटीजन्स के अपने परिवार सदस्यों से अलग होने के ऐसे कारण बन रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित अपनी नीतियां और कार्यक्रम के जरिए बार बार भारतीय पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को जोड़ देने का काम किया है। पीढ़ियों के बीच में आप तो भाषण देने लगे मंत्री जी, सवाल का जवाब दे दो ना। वही प्रश्न अध्यक्ष मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आज जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अंतर्गत कैसे हम और ज़्यादा मिलन कर सकें, इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसमें हमने दादा दादी और शिक्षक विभाग बैठक के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिसमें हम इस प्रकार के जो पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में होती हैं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग, ग्रैंड जो है मीटिंग, जिसमें दादा दादी नाना नानी उन स्कूलों में बुलाने का काम करेंगे और दादा दादी नाना नानी के साथ उन बच्चों के साथ वॉकथॉन के साथ हम उनमें किस प्रकार का प्रेम का भाव वो आने वाले समय में वो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, इस प्रकार की व्यवस्था है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वो अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत देश में वर्तमान में कितने वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं तथा बिहार और झारखंड में उनकी संख्या कितनी है, और ये संख्या जो बढ़ रही है उसको देखते हुए इनको बढ़ाने का क्या ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं सजेशन दूंगा, मैं आपको मंत्री जी को सलाह दूंगा
कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका आधिकारिक डाटा बनाया जाना चाहिए। प्रश्नकाल में सलाह नहीं देते, सलाह देते हैं चेंबर में बैठकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मानिए प्रश्नकाल आदरणीय अध्यक्ष आप महोदय, प्रश्नकाल में उसी को प्रश्न पूछ लो जो सलाह देना चाहते हो, पर सलाह शब्द चेंबर में दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना 15-16 में की। उसके माध्यम से अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारा एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम निःशुल्क आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं और ये वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधा संपन्न आवास प्रदान करने का काम भी होता है। अब तक वर्तमान में देश भर में 706 वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिसमें बिहार में 8 और झारखंड में 15 हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि ये वरिष्ठ नागरिक गृहों को आवश्यक सुविधाओं के लिए जो दिशा निर्देशों के साथ हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आवासीय कमरे और डॉर्मेटरी देने का काम करते हैं, पर्याप्त सुरक्षित पेयजल और अन्य सहायक उपयोग के उपकरण भी देने का काम करते हैं। उनके लिए सुविधाओं में बिजली, पंखे, आवश्यकता अनुसार हीटिंग और बाकी रसोई घर, भंडार कक्ष इत्यादि जितनी सुविधाएं उनको दे सकते हैं देने का काम भी होता है। और जहां तक विस्तार की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि योजना के दायरे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों से जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के माध्यम से जो भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और हम प्राथमिकता के आधार पर उन निर्णय लेकर वो बढ़ाने का काम भी करते हैं। श्री चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दूरदर्शिता ने, संवेदनशीलता ने देश के करोड़ों वरिष्ठों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी है और उसका सीधा आशीर्वाद देश के वरिष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभाशीष भी दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि देश में आर्थिक और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है। एक महत्वपूर्ण योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्या इस योजना के माध्यम से मेरे प्रदेश राजस्थान और देश भर के वरिष्ठों के लिए क्या कल्याणकारी वृद्धाश्रम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सहायक उपकरण हो, चाहे वयोश्री योजना हो, इन योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है और कितनी राशि देश में और मेरे राज्य राजस्थान को मिली है, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही गंभीर और उचित प्रश्न पूछा है। तब मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अटल वयो अभ्युदय योजना, उसी का एक घटक राज्य कार्य योजना है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निधि देने का काम होता है। इसमें खास तौर से जो फोकस किया जाता है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी है। इसमें वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण है, योजना के बारे में जागरूकता है और साथ ही साथ 2019 से 20 से लेकर अब तक राज्य सरकारों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अभी अब तक अपने 151 करोड़ 18 लाख रुपए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का काम किया है और जिसमें राजस्थान के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए देने का काम हुआ है। हम जिलावार इसमें खासतौर से विवरण नहीं रखते हैं, राज्य आपको देने का काम करेगा। और जहां तक वयोश्री योजना के अंतर्गत की बात है, तब मैं कह सकता हूं कि एल्मो के द्वारा जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू की और आज हम लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को हमने उनके लिए उनका जीवन सरल बने, सहज बने, सहायक उपकरण देने का काम किया है। उनके लिए जीवन में कैसे और आसानी हो, इसके लिए जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने देने का काम किया है। और इसमें बड़ी योजना जिसमें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के माध्यम से और शिविर के माध्यम से देने का काम करते हैं और लगभग 100 हमारे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है, जहां पर उचित जगह पर जाकर के, नजदीक स्थान पर जाकर के कभी भी अपने को ले सकते तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 11 मार्च 2025 को सरकार ने एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर दिया था और इनके उत्तर के अनुसार चंडीगढ़ में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1000 रुपये है, पंजाब में 1500-2000 रुपये है, हरियाणा में 3000 रुपये है। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन
2016 से नहीं बढ़ी है। जब इनसे सवाल पूछते हैं ये कहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। चंडीगढ़ प्रशासन से बात करते हैं वो कहते हैं हम निरंतर और लगातार प्रस्ताव भेजते रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कब करने जा रहे हैं? माननीय सदस्य ने चंडीगढ़ में 1000 से ज़्यादा बढ़ाने का काम पेंशन का किया है। ये सीधे सीधे हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ पेंशन का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 60 साल से लेकर के 79 साल तक, सुन लीजिए मेरा, 60 साल से लेकर के 79 साल तक 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 80 साल से ऊपर 500 रुपये, लेकिन बाकी हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं टॉप अप करने का काम करती हैं। तो ये विषय वहाँ जाकर राज्य सरकार से पूछिए, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, लेकिन 200 रुपये और 500 रुपये केंद्र से जाता है, राज्य सरकारें टॉप अप करने का काम करती है। आलोक कुमार सुमन। महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 20 करोड़ होने जा रही है, ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमारा मंत्रालय बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि लगातार हमारी संख्या बुजुर्गों की बढ़ रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमने अपने चाहे अटल अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे घटक हैं उन्हें बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन होम हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी जो है दूसरी संस्थाएं हैं, उनके साथ एमओयू करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिलते हैं उन पर हमारा मंत्रालय काम करता है, और आगे हम लगातार काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 224 224 श्री भाऊ साहेब राजाराम वाकचोरे। क्वेश्चन नंबर 224 माननीय मंत्री महोदय, पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि मेरे शिरडी संसदीय क्षेत्र से और देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी अनेक गांव एवं बस्ती सड़क से नहीं जुड़ी है। पीएमजीएसवाई के मौजूदा नियमों के कारण नया सर्वे नहीं हो रहा है और नई सड़कें स्वीकृत नहीं हो रही हैं। क्या सरकार मानती है कि ये नियम हकीकत से मेल नहीं खाते? क्या बाकी गांवों एवं बस्ती को जोड़ने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा? माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले सदन में भी, पिछले जब हुआ था सत्र, तो उसमें भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी अपने संसदीय क्षेत्र की। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गरीबी उन्मूलन के लिए चालू किया गया था, और मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस योजना को चालू किया था, और उन्होंने ये सपना देखा था कि पूरे भारत में गांव जो सड़कों से वंचित है उसमें हम सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है आदरणीय अध्यक्ष जी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 को मिलाकर अगर जो हम बात करें तो करीब 7,86,000 किलोमीटर का निर्माण हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने करने का काम किया, जिस पर लागत करीब 3,40,000 करोड़ रुपए का लागत आया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जहां तक माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में चिंता जाहिर की है, मैं उनके क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 1,642 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जरूर यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, आप तो बता दो नियम परिवर्तन करने का इरादा है क्या आपका? ऐसा कोई विचार नहीं, मैं तो बता दो नहीं है। माननीय सदस्य। मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री महोदय दूसरा पूरा प्रश्न है कि पीएमजीएसवाई में बनी गई ग्रामीण सड़कों में कुछ वर्षों में खराब हो जा रही है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
जबकि कागजों में रखरखाव के नियमित दिखाया जाता है। क्या सरकार बताएगी कि खराब रखरखाव के लिए किन ठेकेदार अधिकारी पर कार्रवाई हुई, सड़कों की सही रखरखाव के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस योजना को 25 साल होके देश में क्या परिणाम हुआ है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना सिर्फ एक योजना भर ही नहीं है। जब हम इसका टेंडर करते हैं तो एक ईमानदारी के तौर पर पूरे देश में कोई भी कहीं से भी टेंडर डाल सकता है। पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया गया है और मेंटेनेंस का जिम्मेदारी आप जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि राज्य का विषय है। लेकिन फिर भी हमारा मंत्रालय ने 3 स्तरीय क्वालिटी मेंटेनेंस मैकेनिज्म को सुदृढ़ करने के लिए प्रथम स्तर पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में फील्ड लेबोरेटरीज और अनिवार्य मटेरियल को टेस्टिंग की जाती है। द्वितीय स्तर पर एनक्यूएम प्रत्येक चरण में सड़कों का निरीक्षण हम लोग उसको कराते हैं। तीसरे पर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर रैंडम इंस्पेक्शन भी हम लोग उसको कराते हैं। माननीय सदस्य, मेरा आग्रह है कि अगर जो कोई विशेष सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कोई खराब हो गई है तो निश्चित तौर वो लिख के हम दें, उस पर हम लोग एक बेहतर टीम बना देंगे और अगर जो कोई दोषी पाया जाता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। श्री IB ईडन। Sir, thank you for amending the norms in the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. According to the new norms, constituencies like mine, the urban and coastal constituencies are getting benefited. Sir, there is an island called Korangota in Ernakulam Assembly constituency, Cherandallur Panchayat. Sir, 597 people living, 90% of the population living in the island, which is surrounded 4 areas by water, are scheduled caste, scheduled tribe families. These families are not connected to the mainland. They live in the Panchayat area, but if a bridge can be built, the state government has already sent the proposal through the PMGSY project, but unfortunately the central government has not included this in the list, eligibility list. So according to the para 6.6 PMGSY 4 guidelines, for many of these are fishermen families, they are farmers and daily laborers, wage laborers. So kindly include them in the central government list of the PMGSY according to the new guidelines so that they can be connected to the corporation area, to the mainland from the panchayat area. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था। फेज 1, फेज 2, फेज 3 विभिन्न चरणों में हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के विशेष तौर पर एक बस्ती का जिक्र किया जहां पर 500 SC/ST के लोग रहते हैं। इससे पहले भी माननीय सदस्य ने पत्राचार के मार्फत हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया और हम लोगों ने राज्य सरकार से जानकारी उपलब्ध किया तो पता चला कि वहां पर पहले से एक पुल है और मानक के अनुरूप अगर जो एक पुल है तो वहां पर हम दूसरा पुल नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर जो ऐसी कोई बात है तो पत्राचार कर ले, हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध कर लेंगे कि संभव हो पाए तो जरूर कर देंगे। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो। 225 लिखो, कभी इस पे चर्चा कराएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन पे। 225 श्री जयंत बसुमतारी। थैंक यू स्पीकर सर। सर, मैंने मेरे प्रश्नों में से जानना चाह रहा था मंत्री महोदय से कि पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य स्तर पर DNTs, NTs एंड SNTs कमेटी गठन किया गया है क्या? तो इसमें उत्तर आया ही नहीं। तो मंत्री महोदय से मैं फिर से जानना चाहूँगा, पूर्वोत्तर राज्यों में शीत योजना की क्रियान्वयन नहीं होने का क्या कारण है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने छात्र नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से लाभान्वित हुए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीड योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी चाहिए।
मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाना, इसमें राज्य सरकारों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, और मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में जहां जहां पर इस तरह के डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हमारे जो बंधु हैं, उन बंधुओं के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर की जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा बात कही गई है, वहां पर राज्य सरकारों के द्वारा डीएनटी समुदाय को अधिसूचित नहीं किया गया है, और जिसके कारण से इन लोगों को डीएनटी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं और सीड योजना का लाभ इन समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा 22/6/2022 को, 26/6/2024 को और 30/12/2024 को इन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया, और इसके साथ ही साथ वहां पर हमारी केंद्रीय स्तर की 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं राज्यों के साथ में, और एक हमारी रीजनल स्तर पर भी मीटिंग हुई है, जिसमें हमने सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ में और वहां के सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि वहां पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना करके इन समुदाय के लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, आपके माध्यम से, सीड योजना डीएनटी समुदाय को मुख्य धारा की सरकारी योजनाओं से जोड़ने के कैसे सहायता कर सकती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीड योजना के माध्यम से इन समुदाय के, चाहे वो आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, उनके आजीविका की बात हो, उनकी स्वास्थ्य की बात हो, उस समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन सभी योजनाओं के माध्यम से डीएनटी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़े जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीड योजना उन डीएनटी परिवारों की पहचान करती है जो अभी तक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित रहे हैं, और उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, ये प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। और इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी गठन किया जाता है, उन्हें एनआरएलएम से जोड़ा जाता है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार लंबे समय से, लंबे अंतरालों से जो मौजूद जो खाई है, इस खाई को पाटने के लिए डीएनटी परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी रूप से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेज बन जाने के कारण अब ये परिवार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सीड योजना के तहत डिनोटिफाइड ट्राइब समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत पहले से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था मौजूद है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया गया है, और मैं प्रश्न के आलोक में कि बड़ी संख्या में आज भी डीएनटी महिलाएं एनआरएलएम के दायरे से बाहर रह गई थी, और इसका कारण था कि उनकी जो बस्तियां हैं बिखरी हुई रहती हैं, अलग अलग स्थानों पर रहती हैं। ये कहीं जंगलों में रहते हैं, कहीं पहाड़ों पर रहते हैं, कहीं बस्तियों के बाहर रहते हैं, या सड़कों के किनारे छोटे छोटे इस तरह की झुग्गियां बनाकर रहते हैं। और इसके कारण से लगातार गतिशील जीवन शैली और जो मौजूदा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से सीमित जुड़ाव के कारण उन्हें इस योजना में शामिल करना एक कठिन काम था। एनआरएम से डीएनटी की महिलाओं का बाहर रह जाना किसी नियत का नहीं बल्कि संरचनात्मक कारणों का परिणाम था। एनआरएल ने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से उनको अपनी विशिष्ट शैली के कारण
जोड़ते हुए उनको सशक्तिकरण के लिए ये अभियान चलाया जाता है। और जो हमारी जो DNT समुदाय की बहनें हैं, ये बिखरी हुई बस्तियों में रहने के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित थी, इसके कारण से इनको NRM से जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम किया जा रहा है। और उनके जो दस्तावेज हैं, औपचारिक पहचान और दस्तावेज इनको भी बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि हमारी इन बहनों को इन दस्तावेज बना करके उनको शासन की इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पहल की जाए। और बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि जब इस तरह से इनकी बसाहट होती है, बाकी समाज के साथ में इनका एकीकरण नहीं हो पाता और इसके कारण से शासन की योजनाओं की जानकारी से भी ये वंचित होती हैं। मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने क्षेत्र में रहने वाले डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बंधुओं के साथ में जाकर के उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करें, ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ में जुड़कर विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, समाज के इन हमारी अंतिम छोर पर रहने वाली बहनों को भी उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके आजीविका मिशन के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to ask one supplementary question. Madam, the 2017 Data Commission on DNTs recorded that it could not complete a nationwide socio-economic survey because the ministry repeatedly denied it the required funds, despite these communities being described as most backward. Why did the government starve its commission of resources, and why even 8 years after the report, no dedicated nation survey has been undertaken for this communication? Sir, I would like to know from the Honorable Minister, kindly reply on this. माननीय सभापति महोदय जी, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की संवेदनशीलता थी कि 2015 में आयोग का गठन किया गया और 2017 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही DNT समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। लगभग उस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 15 करोड़ DNT समुदाय के बंधु अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और ऐसे सारे बंधुओं को इस योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने का निरंतरता के साथ में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये अभियान में जब तक राज्य सरकारों की उनमें सहभागिता नहीं जुड़ेगी, सभी जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उसके साथ में नहीं जुड़ेगा, तब तक वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए, उनको आजीविका के मिशन के साथ में भी उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनके बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब राज्य सरकारें भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी आगे आकर योजना के साथ जुड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 226 माननीय सदस्य श्री CN अन्नादुरई जी। थैंक यू चेयरपर्सन मैम। क्वेश्चन नंबर 226 माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पट में रख दिया गया। माननीय सदस्य। May the Honorable Minister inform whether all sanctioned scientific and technical posts in the KVK at Tiruvannamalai are presently filled, and if not, the number of vacant posts and the timeline fixed for filling them. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति, तमिलनाडु में जो सांसद श्री अन्नादुरई जी ने पूछा है, वर्तमान में तमिलनाडु में 31 KVK कार्यरत है। जिलावार विवरण संलग्न उनको दे दिया गया है। तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में जिले में एक KVK मौजूद है। कांचीपुरम जिला में अभी कोई KVK नहीं है। नए जिलों में KVK खोलना निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत किया जा रहा है। जहाँ तक सांसद जी ने पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा ICAR के माध्यम से तमिलनाडु में सभी KVK को आधुनिक तकनीक के प्रसार के लिए
100% वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 2021-22 में इनको से लेकर 2025-26 तक अभी के दौरान आईसीआर द्वारा तमिलनाडु केवीके को कुल 326.4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और जहां तक उनके वहाँ उसके अंदर जो केवीके के अंदर जो स्टाफ की बात है तो 80% केवीके का स्टाफ वहाँ तमिलनाडु में है और जहाँ भी और कोई जरूरत पड़ेगी तो और उसकी व्यवस्था की जाएगी। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। In the view of Tirunelveli being predominantly rain-fed district, may the minister state whether the KVK has effectively promoted climate resilient crops, micro irrigation and digital advisory services, and what measurable outcome have been achieved so far? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदया, जैसे पूरे तमिलनाडु के अंदर निरंतर केवीके को सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना को अपग्रेडेशन क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार केवीके की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 21 से 26 तक इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के केवीके के 2 प्रशासनिक भवन को 2 किसान छात्रावास, 20 प्रदर्शन इकाइयां, 30 कृषि मशीनें, उपकरण, वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु को सबसे ज्यादा हमारे सभापति महोदया 29 मई से 12 जून तक जो तमिलनाडु में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के जागरूकता फैलाकर वहाँ अभियान तमिलनाडु के 31 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 7.1 लाख किसानों ने भाग लिया। 3.20 लाख महिलाओं ने उसमें शामिल हुए और जो कुल प्रतिभागी है उसमें 45.6% महिलाओं ने भाग लिया। और कृषि विज्ञान केंद्र, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो माननीय सांसद जी कह रहे हैं, हमारे कृषि की उपलब्धि के लिए देश में 68 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 आईसीआर के अनुसंधान संस्थान हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, तंत्र मौजूद है, जिसमें देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभापति महोदया, आपको पता है कि 60 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी, अनाज की बहुत बड़ी भारी कमी आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये आह्वान किया था देश की जनता से कि एक हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखें। हमारे केंद्र सरकार द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा और हमारे किसानों के द्वारा आज 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ, आपकी डीएम की सरकार क्या कर रही है? आपकी डीएम की सरकार, जब मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100% तमिलनाडु को पैसा दिया है, 100%। मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 100%। कोई एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी तमिलनाडु सरकार को सबसे ज्यादा मदद दी गई है। माननीय सदस्य श्री नव सकनी के जी। माननीय सदस्य श्रीमती डी के अरुणा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अब मुझे मौका देने के लिए। मैं समझती हूँ कि आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों ने पिछले साल विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मानीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ
इस संबंध में अधिक जानकारी और इस वर्ष मंत्रालय की भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रदान करें। सांसद जी ने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु के कृषि विज्ञान केंद्रों में केवीके के माध्यम से हैदराबाद द्वारा विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक आयोजित की गई, उसका उद्देश्य योजनाओं को संतुलित सैचुरेशन कवरेज सुनिश्चित करना और अग्रणी योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाना, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना, इसके लक्ष्यों को वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना और यात्रा के दौरान पहचाने गए संभावित लाभार्थियों को पंजीकरण कराना शामिल था। राज्य की सभी 12,525 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 28.93 लाख प्रतिभागी, जिनमें 17.4 लाख महिलाएं जो 59% शामिल थी, ने भाग लिया। प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में सुरक्षा बीमा 3.14 लाख लाभार्थी, जीवन ज्योति कैंप 2.81 लाख लाभार्थी, 6.66 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच तथा 3.05 लाख लोगों को टीबी रोग की शामिल किया गया। ये सारी हमारे केवी के द्वारा काम किया गया। माननीय सदस्य श्री दामोदर अग्रवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं लोकसभा के प्रश्न क्रमांक 226 के क्रम में पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान में भीलवाड़ा लोकसभा सहित राजस्थान में की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है। सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक कितने किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ा गया है। धन्यवाद। सभापति महोदया, माननीय सांसद जी दामोदर जी अग्रवाल जी ने जो प्रश्न पूछा है, हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूरे देश भर में इस अभियान के अंतर्गत कुल 2170 टीमों ने 60,970 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 728 जिलों के 140 लाख से भी अधिक गांवों के 1.35 करोड़ से भी अधिक किसानों को 95.7 लाख पुरुष और 39.7 लाख महिलाओं ने भाग लिया। इस अभियान ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कृषि आर्थिक परिस्थितियों को कवर करते हुए जमीनी स्तर पर जलवायु क्षेत्रों में सामाजिक पहुंच सुनिश्चित की। मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान राज्य में इस अभियान के अंतर्गत किसानों तक नवीकरण कृषि तकनीकों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने हेतु व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। राज्य में कुल 103 टीमों द्वारा 3,641 कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम के लिए संतुलित, उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना था। इन कार्यक्रम के माध्यम से 41 जिलों में 7,349 गांवों में 8.9 लाख से भी अधिक किसानों तक प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित की गई, जिनमें 6.19 लाख पुरुष, 1.90 लाख महिला किसानों ने भाग लिया। किसानों की सहभागिता के आधार पर राजस्थान राज्य से देश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया, जो अभियान की व्यापक स्वायत्तता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इन प्रयासों से किसानों की तकनीकी समाज में उल्लेखनीय वृद्धि भी है तथा उन्हें उत्पादन वृद्धि और आय संवर्धन हेतु वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरणा मिली है। साथ ही मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा जिले में इस अभियान के अंतर्गत 2 टीमों द्वारा 90 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 22,883 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार के इस अभियान से देश भर में अब तक जो
विकसित संकल्प अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दौरान 3000 से अधिक प्रगतिशील किसान उत्पादक एपीओ, नवाचारकर्ता, कृषि उद्यमी तथा स्वयं सहायता समूह को सक्रिय रूप से अभियान की टीमों से जोड़ा गया। विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों को वीके द्वारा जोड़कर उन्होंने तकनीकी जागरूकता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा बाजारोन्मुख कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में भी अनेक काम किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 227 माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार गौतम जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से क्या मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या नए आपराधिक कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं क्या? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन, सभी हितधारकों के साथ परामर्श और व्यापक समीक्षा के बाद एक मजबूत और आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था सफल हो सका। बीएनएस 2023 में पहली बार महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित प्रावधान को प्राथमिकता दी गई है और एक ही अध्याय के तहत रखा गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड तक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा दोषी के नेचुरल लाइफ या मृत्यु तक आजीवन कारावास है। बीएनएस 2023 में शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या आइडेंटिटी छुपाकर यौन संबंध बनाने आदि को एक नया अपराध के रूप में शामिल किया गया है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए आपराधिक कानून में क्या प्रावधान किए गए? माननीय मंत्री जी। महोदय, न्याय व्यवस्था में विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाइमलाइंस और टेक्नोलॉजी को समन्वित करते हुए 3 नए कानून लाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत कम से कम 145 स्पष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई है। नए कानून मामलों के तेज और निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है। जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण चरण जैसे प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी है, आगे जांच 90 दिनों में पूरी होनी है, पीड़ित और आरोपी को दस्तावेज की आपूर्ति 14 दिनों के भीतर, मुकदमे के लिए मामले की प्रतिबद्धता 90 दिनों के भीतर, मुक्ति आवेदन दाखिल करना 60 दिनों के भीतर, आरोप तय करना 60 दिनों के भीतर, निर्णय की घोषणा 45 दिनों के भीतर और मिर्सी पिटीशन दाखिल करना राज्यपाल जी के समक्ष 30 दिन और राष्ट्रपति जी के समक्ष 60 दिन सुव्यवस्थित किया गया है और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। फास्ट ट्रैक जांच के तहत नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं। जानकारी दर्ज करने के 2 महीने के भीतर समय पर पूरा करना माननीय मंत्री जी प्लीज, जब बोल रहे हैं सरकार तो द्वारा मत सभी किया हाईकोर्ट से साथ समन्वय स्थापित किया गया है तथा अब तक 17 हाईकोर्ट से साथ बैठक की जा चुकी है। अब मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 2 स्थगन का प्रावधान है। ओके। भारत सरकार
प्रश्नकाल पूरा। कोई विशेष बात बतानी है आपको? 1 मिनट हो गया पूरा। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गुरजीत ओजला, श्री नीरज मौर्य, सच्चिदानंद आर, मणिकम टेगोर, विजय बसंत, के राधाकृष्णन, बेनी बैनन, कुलदीप इंदौरा, प्रोफेसर सौगत राय, नरेश चंद पटेल, लालजी वर्मा, अभय सिन्हा, देवेश शाक्या, पुष्पेंद्र सरोज, कुमारी सुधार, DK कतील आनंद, डॉक्टर अंगो मच्चा विमल, TR बालूजी आनंद बोले। माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव बहुत तत्काल और गंभीर समस्या के लिए लगाया जाता है। मैं कई माननीय सदस्यों को देख रहा हूं, वो रोजाना स्थगन प्रस्ताव इसलिए लगाते हैं कि मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं। अगर वो रोज लगाएंगे तो नाम पढ़ना बंद कर दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की एक व्यवस्था है। आप सब सीनियर व्यक्ति हैं। तत्कालीन घटना, गंभीर घटना जिसमें सदन रोक कर चर्चा करे, वो स्थगन चर्चा होती है। सभा, मैंने सबके लिए नहीं कहा, प्लीज बैठिए। आइटम नंबर सर। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2